sir, Sufinder sir, and Sunena ma'am to please come over here for lap 19 before Ma Saraswati. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योते नमस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योते नमस्तुते दीपज्योते नमस्तुते दीपज्योते नमस्तुते या कुंदेन्दुतुषारे हारिधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी मभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धितरां शारदाम् वन्दना के स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो वन्दना के स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो वन्दनीय
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रत्नाकरा द्योतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजश्री रत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापा शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मातृप्रणाम 1 2 3। Education is not the learning of facts. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Training helps teach the vision and mission, but employees must put the training into action for it have meaning. A very good morning to respected principal sir and worthy teachers. As we all know that we all are gathered here to attend the seminar on the topic Teacher Capacity Building Program. Yesterday we all have attended the first day of this seminar and we all have learned many innovative and creative things in an effective way. Principal sir has guided us each and everything very nicely. In his guidelines, he told us that how we can enrich, enhance and improve our art of teaching skills and teaching methods. Really, we got inspired a lot in yesterday's session. And today, second day of the seminar is going to start. For this, I would like to invite Honorable Principal Sir once again here to start the seminar. Please, sir. Please welcome sir with a huge round of applause. Okay, this seminar, today's session will be completed only in one session. Okay, second session will not be conducted today. First session only will be there. Welcome back. Before I start today, just 2-3 things I have to say before we go to the point. Tomorrow is the PTM for class 1 to 8. Yes. So my respected teachers, please plan for that. Whatever preparation you need, you have to do just after this program. After that you will leave. Okay? And the pastor, what do you report in the examination? The work is over. 9th and 12th area? Yes, sir. Anything left? If anything left, it is completed right now after this session. Okay, call the teachers and get it completed. So both the parts are necessary for the coming session. And the third important thing comes to that. Okay, after tomorrow, we should be in the full flow in the school. Yes. So a lot of students are coming for the transport, and we are in a passive mode by the last 1.5 years approx. Strength is coming in a good manner. Whatever the transport fees has been deposited, on the basis of that one I am telling you, a good number of students are going to be here. Get prepared for that.
आप सुप्तावस्था में हो तो जागृत हो जाए, क्योंकि आपने इतनी नंबर इस स्कूल में देखी नहीं है। जब से बच्चे आए हैं स्कूल चला नहीं है, वहाँ से लगभग 500-600 बच्चे धीरे धीरे ट्रांसफर हो गए। ना उन बच्चों ने स्कूल देखा है ना आपने बच्चे देखे। जिस दिन इस बिल्डिंग में पूरे 2000 बच्चे होंगे हमें मुश्किल होगा संभालना। तो स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दैट, ठीक है। तो आपने पैसिव मोड से एक्टिव मोड पे आ जाए। जो इंग्लिश टीचर है वो समझे मेरी बात को, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में आ जाए। तो दिस इज अबाउट द today's and tomorrow plan. Work for it, think over it, plan for it. Okay? पहले हमें कल 1 to 8 PTM अच्छे से निकालनी है। कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। जो कॉन्टेक्ट में आए थे मेरे पास, आई हैव डॉक्टर अंजू मैम एंड गिवन माय प्लान। उनका भी डायरी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। राइट ऑल दैट आल्सो। और जितने बच्चे आते हैं उनको डायरी मिल जाएगा, वो पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो अगेन आई हैव टू स्विच ऑफ, स्विच मोड मेरा होता है, स्विच प्रोफाइल। तो मैं एम स्विचिंग माय प्रोफाइल। I'm coming to my topic back. Before I start, एक बार जीवन कुछ अपने आप करता है, हम कुछ करते नहीं। कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पत्नी वाला पोहा खाने वाला, याद है आपको? ठीक है। आज फेसबुक ने मुझे बताया 7 अक्टूबर 2015 की घटना थी, यानी आज की। फेसबुक बताता ना मेमोरीज में। यस सर। अभी मैं ऑफिस में खाली बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, बीच में अपना मोबाइल देखा मैंने, तो फिर से वो चीज़ रिकॉल आ गई। 7 अक्टूबर 2015 किया था। अच्छा बेटा नहीं था, बाहर गया हुआ था, हम ही दोनों थे, तो फिर ऐसा होने लगा। लाजमी है, पत्नी शास्त्र अलग है, तभी उस पर अलग से बातें होंगी, लेकिन वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण है। कल मैंने बताया था आपको। तो वहीं से शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक वाज दैट टीचर्स बियर ए मॉरल वैल्यू। हम लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे थे, टीचर्स बियर ए मॉरल वैल्यू। और हमने कल अपने पूरे उद्बोधन में कई बार इसके जोड़ दिया कि हम स्कूल बिजनेस में हैं, शिक्षा के व्यवसाय में हैं, जहां मॉरल्स और एथिक्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। द फर्स्ट टॉपिक वाज दैट माइंड योर वर्ड्स। और उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको। कत्ल और हत्या के बारे में बताया हमने आपको। ये बताया कि नाश्ते में बच्चों को उबाल कर अंडे देना चाहिए, ऐसा भी कहा हमने। तो माइंड योर वर्ड्स व्हेनेवर यू आर जस्ट बिफोर द स्टूडेंट्स। आपके शब्द आपकी पहचान होते हैं, आपके शब्द आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं, आपके शब्द आपको परिभाषित करते हैं क्लास में। नेवर यूज एनी अब्यूजिव लैंग्वेज, ये भी कहा मैंने। क्लास में बच्चों के सामने कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें। कई बार होता है क्लास में हम गुस्से में होते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं, अचानक हम रैश हो जाते हैं और हम एक सेकंड मोड में चले जाते हैं, जो मोड हमारे लिए सही नहीं होता। किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी भाषा के ऊपर पूरा कंट्रोल करना होता है। बच्चों से कभी किसी तरह की कोई लूज टॉक नहीं करनी होती है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे आपको कि सम टीचर्स यूज लाइक अ लैंग्वेज, इडियट, यू आर इडियट, यू आर स्टूपिड फेलो, लाइक दैट। तो यू शुड नॉट गो फॉर इट। आफ्टर दैट आल्सो एम्फसाइज ऑन दैट पावर ऑफ बिलीफ। आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा होता है जीवन। एक बार अपनी पर्सनालिटी पर एक अच्छा कमांड लेने के बाद बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप सोचते हैं। घटनाएं ऐसे घटित होती हैं जैसे लगता है किसी ने स्क्रिप्टेड किया हुआ है। आई वांट टू शेयर वन गुड इंसिडेंट्स विद यू। मुझे मॉर्निंग वॉक की आदत एकदम से नहीं पड़ी। लगभग 2004-05 के आसपास मेरा वजन 90+ हो गया था। डॉक्टर से दिखाने की बात आई, कुछ प्रॉब्लम हुई, हार्ट्स, कुछ ऐसा लगा मुझे। मोस्टली टीचर्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं। देन डॉक्टर टोल्ड मी कि शुक्ला जी बताओ कुछ ऐसा करें कि दवाई तो हार्ट की फिर दिन भर जिंदगी भर खानी पड़ेगी। मैंने नहीं सर, अभी तो मेरी एज ही नहीं है ऐसी, आई एम हार्डली 35, मैं क्यों खाऊंगा दवाई, मैं तो नहीं खाता। फिर क्या करना है, कुछ और बताओ। सुबह वॉक करना शुरू करो, आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आपकी हाइट आपकी एज के हिसाब से। आई स्टार्टेड फॉर दैट। That has become the part of my life till today. अगर सुबह मैं 4 किलोमीटर ना चलूँ, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा ना चलूँ, तो मुझे लगता है शायद दिन भर मैं काम नहीं कर पाऊँगा। मेरा जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है अगर मेरा फिजिकल वर्क पूरा नहीं होता। कल भी मैंने जोड़ दिया था कि अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालें जो काम आपको अच्छा लगता हो। तो ये पीलीभीत की बात है। पीलीभीत एक बोर्ड एस्टेब्लिश सिटी है, सिविल लाइन्स एरिया जहाँ मैं रहता हूँ, आवासीय क्लास।
उसके बाद डीएम हाउस, एसपी हाउस, सारे एक ही रोड पे, टनकपुर रोड पे। यूजुअली आई गो ऑन दैट रोड, वो रूटीन था मेरा। एक मुझे ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग दिखाई पड़ती थी और मैं सोचता था यार ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, अगर इसके लॉन में बैठे कोई चाय पी जाए मजा आए। और इस ख्याल के साथ मैं सालों उस बिल्डिंग के सामने से गुजरता रहा, इस ख्याल के साथ कि बिल्डिंग ब्रिटिश कालीन है, बड़ा प्यारा सा बंगला है, किसी अंग्रेज का रहा होगा किसी टाइम, और मुझे यहाँ अगर लॉन में बैठ के चाय पीने को मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। बात आई गई हो गई, ख्याल दिल से निकला नहीं। जब भी उस बिल्डिंग के सामने से गुजरता ऐसा होता। फिर एक दिन शाम को एक पुलिस की जीप मेरे दरवाजे पर रुकती है, शाम को 8 बजे, अपना बैच क्लास खत्म कर रहा होता हूँ। एक दरोगा जी निकलते हैं, उसमें से बड़ा आवाज में पूछते हैं सिपाही का घर। दरवाजे पर पुलिस आया, अध्यापक के घर, अच्छा नहीं लगता ना, आप घबरा जाते हैं। आज की एज स्ट्रेस लेने की है, उस वक्त नहीं थी। पता लगा भाई शहर के कोतवाल जी हैं, मिलने आए हो। क्यों? नए RI आए हुए हैं पुलिस लाइन में, उनकी बेटी है, उसको मैथ्स पढ़ती है। ठीक बात है, बिठाओ प्यार से चाय पिलाओ। बातचीत हुई, आपको बुलाया है सर, चलते हैं। फोन पे कॉल किया, नहीं उन्होंने कहा बुलाने की जरूरत नहीं है सर को, मैं आऊँगा मिलने। खैर वो आधे घंटे में वो भी आ गया मेरे पास। समय तय हुआ, कल शाम को 8 बजे मिलेंगे। उन्होंने कहा मैं गाड़ी भेज दूँगा। सर बहुत अच्छे थे, देवेंद्र कुमार जी यहीं बिजनौर के रहने वाले हैं, अब मेरे परमानेंट मित्र हैं वो आज की डेट में। अगले दिन खुद अपनी गाड़ी से आए, मुझे लेके गए, और मैं सरप्राइज हुआ जब वो गाड़ी उसी बैंगलोर के अंदर घुसने लगी। फिर उसी लान में बैठ के मैंने चाय पी उनके साथ। मैंने कहा नहीं उनसे, उन्होंने खुद ही बाहर बैठाया, लान में बैठेंगे सर? मैंने कहा क्या है ये, व्हाट इज दैट? ये पावर ऑफ बिलीफ है। मेरे साथ जीवन में ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं, मैं शायद सारी की सारी नहीं शेयर कर पाऊंगा, मुझे याद नहीं आती कई बार, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। ये नियति, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, कराता है। चीजें आकर्षित करती हैं अपने आप, आपको ले जाती है उस तरफ। पावर ऑफ बिलीफ पे मेरा गहरा कमांड है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा मानता हूँ। आप उस समय तो शायद नहीं समझ पाया होगा, लेकिन अब मैं इस बात को बहुत गहरे मानता हूँ। और आज भी मतलब बहुत सारी घटनाएं अभी इस यहाँ आने के बाद भी मेरे साथ ऐसी हुई हैं, जिनको मैं मानता था कि ऐसा होगा और वैसा ही हुआ। जैसे मैंने शायद आपको बताया वहाँ पे स्कूल स्ट्रक्चर के बारे में, मेरा जॉइंट सोचते भी यार, मुझे सारी बिल्डिंग्स दिखाई गई, सारा बताया गया, सारा मैनेजमेंट, सब लोग मिले मुझे, और मुझे उसी वक्त समझ आया कि चलना नहीं है ऐसे। संस्थाएं बड़ी हो रही है, जब कभी 400-500 बच्चे थे आप तो कंट्रोल कर लेते होंगे, जब कभी 10, 20, 50 का स्टाफ था आप कंट्रोल कर लेते होंगे, उसके बाद चीजें मुश्किल होती चली जाती है। फिर मैंने एक बात और कही थी, थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटी। जीवन में जो अवसर मिलते हैं आपको, उन अवसरों का लाभ उठाइए। I have given you example of island, barefoot example. जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, वहाँ 2 तरह के लोग जाते हैं। एक जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखते हैं वहाँ कि आप शोरूम खोलो, माल भेजो, सारा बेच देंगे कर लो, और दूसरे जो कहते हैं नहीं इनको तो आता ही नहीं है चप्पल पहनना, ये क्यों खरीदेंगे? तो लाइफ ऐसे ही आपको दर्शन देती है, आप उसको किस तरह से लेते हैं। जीवन में घटनाएं घटित होंगी, अच्छी या बुरी, आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट, ये आपके ऊपर है कि आपका परसेप्शन क्या है उस घटना को लेकर। जीवन घटित हो रहा है हर पल प्रतिपल, हम उसे किस तरह से लेते हैं ये हमारे टोटली हमारे ऊपर होता है। एक बात मैंने और कल समझाई थी, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। अच्छाइयाँ उधार मिलती है, बुराइयाँ नकद। एग्जाम्पल भी दिया मैंने कि दूध उधार आता है हमारे घर में, हम पैसे उसके 1 महीने बाद देते हैं, और शराब नकद मिलती है, काउंटर पे पैसे पहले रखो उसके बाद देते हैं। हम किसी की अच्छाई के बारे में यकीन नहीं रखते। कोई बताता है हमें कि फलां व्यक्ति बहुत अच्छा है, हमें यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन कोई बताता है कि फलां व्यक्ति बहुत बुरा है, उसने ऐसा कर लिया, हम तुरंत यकीन कर लेते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? सोचें, हम अध्यापक हैं, हमारी अपनी गरिमा है, हम समाज के सोचे हुए तंत्र से नहीं चलते। अध्यापक बुद्धिजीवी कहलाता है, वो अगर बायस हो जाएगा, दूसरे के विचारों से गवर्न हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। आपको
एक अपना कंट्रोल, एक अपनी सोच चाहिए होती है। वो कहाँ से मिलेगी? पहला पॉइंट, सविद्या जगमुक्ति। जब आप सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे तब आप एक इंडिपेंडेंट सोच रख पाएंगे और एक अपने हिसाब से चीज़ों को देख पाएंगे बिना किसी लेवल के, बिना किसी परसेप्शन के। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि मैं ब्राह्मण, मैं श्रेष्ठ, मैं पंजाबी, मैं सिंधी, मैं शूद्र। उनमें नहीं जाना है। यूनिफॉर्मिटी होती है स्कूल में, स्कूल यूनिफॉर्म चलते हैं। मैं कॉल कर रहा हूँ इसलिए सारी बातें बात आए दिमाग में हमारे अच्छे से। टीचर्स परेशान होते हैं कि उन्हें कोई थैंक्स नहीं कहता। मैंने भी एक एग्जाम्पल दिया था कि आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं, जो बाद में अच्छे से झाड़ू पोछा करके चमकाता है उसको, आप खुश होकर उसको कुछ पैसे देते हैं कि मेरी गाड़ी अच्छे चमका देना। लेकिन आपको किसी पेरेंट्स ने आज तक नहीं कहा होगा कि 1 महीने की फीस एक्स्ट्रा ले लो, मेरे बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाना। ये थैंकलेस जॉब है। क्या हम अच्छा काम ना करें? नहीं। हमारा काम जंगल में फूले हुए फूलों की तरह है। जब हवा बहेगी जिस तरफ, खुशबू जाएगी उस तरफ, देर सही सही वो लौट के आएगा। बाउंस बैक जैसा सिस्टम है। हम दीवार पे जितनी तेजी से गेंद मारते हैं, वो रबर की गेंद बाउंस बैक होती है। हम इंतजार नहीं कर पाते। हम आज किसी के साथ अच्छा करते हैं, तुरंत सोचने लगते हैं कल वो हमारे साथ कुछ अच्छा करे। नहीं, ऐसा नहीं। ऑलवेज डू गुड डीड्स। हमेशा अच्छे काम करते रहिए। आप देखेंगे जब कभी आप ट्रबल में होंगे, अचानक कहीं से कोई तीसरा व्यक्ति प्रकट होगा और आपका काम हो जाएगा। आज मैं यही बात है, पावर ऑफ बिलीफ मेरे साथ। मैंने आपको बताया कल शायद, जीवन में मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। अभी भी मैं लॉन्ग ड्राइव पे ऐसे चल पड़ता हूँ बिना सोचे समझे। बहुत साथी लोग डराते हैं, फैमिली है, कुछ हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कुछ नहीं, और कुछ होगा भी नहीं। ये पावर ऑफ बिलीफ है। फिर मैंने कहा था कुछ टीचर्स अच्छा काम करते हैं, एप्रिशिएशन नहीं मिलता उनको, साथी टीचर्स भी जेलस हो जाते हैं कि इनका उतना सम्मान नहीं है, हमारा क्यों। मैंने एक बात कही थी कि घर का एक कोना ज्यादा साफ हो तो दूसरा गंदा लगने लगता है। सारे कोने साफ नहीं होते। सब लोग मिलकर सिस्टम बनाते हैं। अकेला व्यक्ति सिस्टम नहीं होता, ना अकेला व्यक्ति सिस्टम के साथ चल सकता है। सब लोग प्रयास करें थोड़ा थोड़ा। आप सूरज नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, दिया बन सकते हैं। एक 100 वाट का बल्ब की रोशनी आप में है, इतनी क्षमता है, उतनी क्षमता से चमकें। जहाँ बैठेंगे, जिस कोने में बैठेंगे, उतना हिस्सा तो उजाला होगा। इस मानसिकता के साथ काम करें। थैंक्स मत ढूंढें लोगों में। समाज बहुत निगेटिव है। जो सम्मान पहले था, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बॉर्न टीचर हूँ, मैंने अपने पिताजी को सम्मानित होते देखा समाज में। उस वक्त ऐसा था कि प्राइमरी स्कूल का टीचर है, बहुत सम्मानीय है मोहल्ले में, अपने नगर में। इंटर कॉलेज का टीचर है, और सम्मान है उसका। और कहीं अगर डिग्री कॉलेज थोड़ी से कोई आसपास रह रहा है, कोई प्राचार्य जी आसपास रह रहे हैं, तो भगवान है, खुदा है। वो जो कह देंगे मोहल्ले में वही होना है। तो आई हैव गॉन थ्रू दैट स्टेज। मैंने एक अध्यापक का वो सम्मान देखा है, और शायद उसी भावना ने मेरे मन में कहीं ये विचार लिया कि मुझे आगे चल के अध्यापक ही बनना है। मैं कुछ और सोच नहीं पाया उसके लिए। टीचिंग के अलावा कोई बात आई नहीं दिमाग कि इसके इतर भी दुनिया होती है, जैसे आगे भी कुछ सोचा जा सकता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं। पिछले 2 साल में समाज के ताने बाने ने, मीडिया ने, लोगों ने टीचर को सबसे लास्ट में खड़ा कर दिया। समाज निगेटिव है आज की डेट में अध्यापक के प्रति। उनके विचार अच्छे नहीं हैं आप लोगों के लिए। वो सारे काम करेंगे, स्कूल की फीस नहीं पे करेंगे। आते हैं मेरे पास, बहस करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या काम नहीं किया लाता हूँ। 1 तारीख आती है, आप घर किराए पर रहते हो, किराया नहीं देते हो? देते हैं सर। दूध का बिल देते हो? हाँ सर देते हैं। टीवी रिचार्ज कराते हो? हाँ। मोबाइल रिचार्ज कराते हो? हाँ। राशन लाते हो? हाँ। सब काम करते हैं, स्कूल की फीस नहीं देना चाहते। क्यों? शिक्षा उनकी प्रायोरिटी नहीं है। एजुकेशन को उन्होंने अंत में रखा हुआ है। माय रेस्पेक्टेड टीचर्स, मैं आपको आज एक क्लू देता हूँ। समाज में जहाँ भी बैठे हैं, जिसके साथ भी बैठे हैं, उनको समझाएं
एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एसेट है। अध्यापक बहुत अमीर नहीं होते। एक बार मैंने ऐसे में लिख दिया था कहीं अपने दोस्त के लिए, शायद उसने लिखा था मेरे लिए कि माय बेस्ट फ्रेंड इज राजीव, हिज फादर इज ए टीचर, ही इज ए रिच मैन। टीचर laughed and just disclosed the topic in the classroom and discussed with us। उन्होंने टीचर भी कहीं अमीर होते हैं, how funny is that? समझाया उन्होंने। फिर मैंने घर पे आके पिताजी को बताया तो उनका बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अध्यापक कहाँ अमीर होते हैं? किस अध्यापक को इतनी सैलरी मिल रही होती है कि वो एक लैविश जीवन जी सके, एक विलासतापूर्ण जीवन जी सके? नहीं होता ऐसा। आज के हिस्से में मैं सबको समझाता हूं कि अपने बच्चों की एजुकेशन पे अच्छा इन्वेस्ट करो। अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने। लगभग 20 साल की टीचिंग के बाद 2010 के आसपास मैं इतना पैसा नहीं कर पाया था। माय सन वाज इन IIT एग्जाम। हम ब्राह्मण हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। 236 पे मेरे बेटे को IIT में CS नहीं मिली और 110 पे और 78 पे OBC और 80 वालों को मिली। बहुत परेशान थे वो, मुझे तो IIT करना है, CS से ही करना है, बीटेक करना है, मेरा कोई दूसरा ध्येय नहीं है। मैंने ठीक है करो, तो बाकी भी तो यूनिवर्सिटी है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में उनके फॉर्म करो, वहाँ से करो। किया उन्होंने। मणिपाल की फीस 18.5 लाख रुपए थी बीटेक की 4 साल की, प्लस 4 साल का आप और खर्चा निकाल लीजिए, 1 लाख पर ईयर मान लेंगे तो 22.5 लाख रुपए होता है। एक टीचर अपनी पूरी जीवन में इतना पैसा नहीं कमा पाता। लेकिन आप मेरे हौसले को सलाम करिए। ऑलवेज आई टू रिस्क। मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ, बड़े बड़े कैलकुलेटिव, अंधे रिस्क नहीं, कैलकुलेटिव। मैं साथ में हूँ, कैलकुलेटिव रिस्क लेता हूँ, लिया मैंने। और आपको बताते हुए मुझे अजीब सा लगेगा कि जिस साल उनका बीट कंप्लीट हुआ सर मेरे पास नेट वर्थ 0 थी। 2014 में जब उनका कंप्लीट हुआ, 2017-18 में कंप्लीट हुआ, मेरे पास शायद अकाउंट में 10 रुपए नहीं। वेरी ट्रूली आई एम टेलिंग यू, आई एम शेयरिंग माय पर्सनल व्यूज विद यू। उनको कॉलेज से जॉब मिली, 40,000 पर मंथ अप्रॉक्स उनको ऑफर हुआ। मैंने कहा ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं है। आजकल बीटेक कॉलेज वालों को कॉलेज से जॉब मिलना कठिन है, आप बाहर जाके जॉब ढूंढ नहीं पाओगे, ज्वाइन कर लो। 2 साल उन्होंने कंपनी कार देखो में काम किया और अभी लॉकडाउन में मैंने यहाँ बुला लिया था घर अपने पास, और अभी यहीं बैठे बैठे उन्होंने अपना जॉब चेंज कर ली। नाउ इज गेटिंग मोर देन 12 लाख पर एनम। इस साल उनका लगभग 13 लाख के आसपास पैकेज है अभी। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 26 लाख रुपए हो गए। तो जो 22.5 लाख रुपए मैंने 2014 से 2018 तक इन्वेस्ट किए थे, आज वो वापस नहीं आए। तो अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाओ, अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दो, उन पर जितना पैसा खर्च कर सकते हो करो, सब वापस आने वाला है। अगर आपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, जैसे हमने कल बात की दिन भर, आज भी करेंगे, तो कहाँ जाने वाले हैं? वो सब लौट के आने वाले हैं। बच्चों की एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट समझ के खर्च करो, फीस से बचो मत। मैंने शायद आपको मीटिंग में कभी बताया हो कि मेरे स्कूल में भी जहाँ मेरा बच्चा पढ़ता था, वहाँ स्टाफ की 50% फीस ऑफ थी। पहले साल मुझे नहीं पता था, तो रिलैक्सेशन हुआ, नेक्स्ट ईयर से मैंने रिलैक्सेशन नहीं लिया अगले 11 साल तक। मैंने कहा नहीं, आई एम कैपेबल टू पे माय फी, मेरा एक बच्चा है, मैं कैपेबल हूँ, फीस पे करूँगा। उसके बदले में कहा प्रिंसिपल ने कि भाई नहीं हम तो करते हैं स्टाफ का, आप नहीं लेना चाहते आपकी मर्जी। एक आया जी थे मेरे वहाँ, उनके कई बच्चे पढ़ते थे, तो स्कूल में नियम था 2 ही बच्चों की फीस हम दे पाएंगे 50%, अगर तीसरा बच्चा पढ़ता है तो पूरी फीस देनी पड़ेगी। बहुत सारे स्कूल ऐसे चलते हैं। तो मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं इनकी फीस माफ कर दो, आप मेरे भी आप। तो उनकी फीस माफ करवाई मैंने, वो बहुत थैंकफुल नहीं लंबे समय तक मुझे। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं पे कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते आप मत करिए। इस सारी बात को बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दें, उनको बेहतर इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं, उनको अच्छी जगह भेजें, अच्छे प्लेटफॉर्म पर भेजें, वहाँ से उनके पास आइडियाज आते हैं। जो अच्छे प्लेटफॉर्म हैं उनको आइडियाज देते हैं। मणिपाल में रह के उन्होंने बताया मुझे कि GRE क्या होता है, टॉफल क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे होते हैं। लास्ट ईयर गॉट एडमिशन इन
पेंसिल्वेनिया यूएसए और द MS प्रोग्राम। लेकिन लॉकडाउन में वो क्लास रेगुलर नहीं चल रही थी तो मैंने भेजा नहीं। मैंने ऑनलाइन क्लास के लिए क्या करना है, इतना पैसा देके कि अब कभी हालात सही होंगे अगले साल ट्राई कर लेना, भेज देंगे। और वैसे भी कोई जरूरी नहीं है यूएसए MS नहीं करते, उनका करियर नहीं बनता। जब IIT में नहीं हुआ तो मैंने उसे यही समझाया कि सारे IIT इंजीनियर सक्सेसफुल नहीं होते लाइफ में, और सारे सक्सेसफुल लोग IIT इंजीनियर नहीं होते। तो आप उस बात को छोड़ो। ये बात यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम क्लासरूम में होते हैं, बच्चों से रिलेट करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, तो आप देखेंगे पेरेंट्स आर द लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। आप उन्हें समझाएं PTM में जब कभी बात होती है, सारे पेरेंट्स को नहीं समझा पाएंगे। जिनके बच्चे अच्छे हैं एजुकेशन में, those are the rank holders, they are good enough in the class, at least you can make them understand you have a good investment on your child's education, it will return back, ये वापस आएगा। ठीक है, आपने मेरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कल से। डोंट बी नेगेटिव। एक 60 बॉटल का एग्जाम्पल दिया था कि वो नमक की बोतल रखी रहती है सामने, बच्चे को दिखती नहीं है, क्यों? उससे पहले ही बार में ना कह दिया था कि भाई मुझे नहीं पता कहाँ रखी है। कभी एकदम से नेगेटिव मत बने। कोई समस्या आती है, एकदम से अपना रिएक्शन मत दें, उसे सोचें समझें। जैसे व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ, आप जब मुझे कोई बताता है ये काम नहीं हो सकता, मैं उसे कम से कम 2 तरीके बताता हूँ कि काम इन 2 तरीके से तो हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति मुझे बताता है ये काम नहीं हो सकता, मैं उसे हमेशा ऐसे तरीके बताता हूँ ये काम हो सकता है, आपने ट्राई नहीं किया, आपने सोचा नहीं ऐसा। ना वाला कॉलम मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैंने अपने पूरे करियर में कितनी भी कठिन परिस्थितियां रही हूँ, इस मोड में नहीं किया कि काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी साधन नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं काम नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती हैं आप चाहते हैं करना, आपके सराउंडिंग्स आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं होती, लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं वो काम नहीं हो सकता। आपसे नहीं हो सकता, दूसरे से होगा। विजनरी बने। अगला टॉपिक पे आ रहा हूं। ये कल इगोइस्टिक का टॉपिक था, डोंट बी इगोइस्टिक मत बने, विजनरी बने। विजनरी बनने का मतलब क्या है? आपको जो चीज लगती है कि आप नहीं कर पाएंगे, और आप जब अपने सीनियर के पास जाते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं, आपको बताते हैं काम हो सकता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? आपको जहां से लगता है काम नहीं हो पाएगा, उनको क्यों लगता है ऐसा हो जाएगा? एक एग्जांपल से समझें। आप हाईवे पर अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं और आगे दूर 5 किलोमीटर के बाद कहीं गड्ढा है और उसमें कोई वाहन गिर चुका है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, आप भी उसी स्पीड में जा रहे हैं, नेचुरली आपको उस गड्ढे में गिरना है, क्यों? आपको दिख नहीं रहा वहां से गड्ढा हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, वन पर्सन हु इज इन द हेलीकॉप्टर ऑन द अबव साइड, उसी समय रिलेटिव थ्योरी में एक व्यक्ति है जो हेलीकॉप्टर से चल रहा है, उसको वो गड्ढा भी दिख रहा है, उस गड्ढे में पड़ी हुई कार भी दिख रही है, और जो कार हाईवे पे चल रही है और जो पता है जाके गिरेगी, उसको वो भी दिख रही है। तो दैट इज द विजनरी मी दैट वी हैव, यू हैव टू ट्रैवल ऑन दैट। हमें यहां से वो चीज दिखती है। एज अ प्रिंसिपल पार्ट इन द चेयर वी कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट मोमेंट। अगर ये घटना हो रही है, आप ये गलतियां कर रहे हैं, तो मुझे पता होता है आगे चल के क्या समस्या आने वाली है, मैं सबको बता देता हूं। सुखिंदर साहब के पास डिस्कशन होता है हमारा, मैं कहता हूं ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा होने वाला है, तो कहते हैं कि कैसे बताऊं? मैंने कहा नहीं, मुझे दिखता, मुझे आगे आने वाली चीजें दिखती हैं। तो जब आप इतने विजनरी हो जाते हैं जीवन में, जब आपका धरातल थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, आपको आने वाली चीजों का आभास होने लगता है, दिखने लगती हैं चीजें आपको, आप जीवन को बेहतर समझ पाते हैं, दूसरों को बेहतर गाइड कर पाते हैं। ये सापेक्ष थ्योरी है। एक ही समय दोनों लोग हैं, एक को वो चीज नहीं दिख रही है, दूसरे को वो चीज दिख रही है, वो समझ पा रहा है। तो इससे लोगों की क्षमता का आकलन होता है कि कौन सा व्यक्ति कहां पर किस समय क्या डिसीजन ले पाएगा और कौन सा व्यक्ति किस समय कहां डिसीजन नहीं ले पाएगा। जो उसी रोड पे कार पे चल रहा है, उसका डिसीजन नहीं है कि वो आगे जाके रुक सके, लेकिन जो ऊपर चल रहा है उसका डिसीजन है कि कार रुकनी चाहिए। तो जब आपके बड़े लोग आपको समझाते हैं कि आपको काम नहीं करना है, हैव फेथ इन देम, हैव बिलीव इन देम, विश्वास करिए उन पे। अगर हम आपको कहते हैं कि काम आपको नहीं करना है, आप ऐसे मत करो, आप प्लीज सुनो, मत करो,
देख पा रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं। ये एक सापेक्ष तीव्र की घटना है, लेकिन जीवन में बहुत गहरे प्रभाव रखती है। हम बच्चों को, अपने बच्चों को, अपनी क्लास को, अपने पर्सनल व्यक्तिगत बच्चों को बेहतर गाइड कर पाते हैं। क्यों? हमने उसे बेहतर जीवन देख रखा होता है। अगर आज कोई बच्चा गलती कर रहा होता है तो ऐसा तो है नहीं आप बर्थ हुई आपके और टीचर हो गए, आपने भी तो यात्रा तय की हुई है ना। भाई मेरा बच्चा हॉस्टल में है, मुझे पता ना कि मैंने हॉस्टल में क्या किया था। रिकॉल 25 years back, the same will happen with your child. आप बचा नहीं पाएंगे उसको, क्यों ऐसा होना है। आप विवेक दे सकते हैं, कल मैंने कहा था अनुशासन एक थोपा हुआ, एक जो विवेक से है सुधार। अपने बच्चे को उन गलतियों की तरफ जाने से रोक सकते हैं। बेटा हॉस्टल में ऐसे ऐसे होता है, हॉस्टल में ड्रग्स भी होते हैं, हॉस्टल में सिगरेट भी होती है, हॉस्टल में ऐसा भी होता है, हॉस्टल बंक करके भी जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, क्लास बंक करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, यू कैन बेटर गाइड। दूसरी बात, हम बच्चों को सिर्फ अपनी जीत की कहानियां सुनाते हैं। हम क्लासरूम में जब बताते हैं तो हम क्लासरूम हीरोज होते हैं, टीचर्स आर द क्लासरूम हीरोज। वो अपनी सारी सक्सेसफुल स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाते हैं और बच्चे उसको एडमायर करते हैं, कहीं ना कहीं से अपने टीचर्स को एज हीरो में देखते हैं, हीरोशिप में देखते हैं और वैसे बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। घटना का दूसरा पहलू भी है, आप उनको अपनी असफलता की कहानियां भी सुनाएं। मैंने अपने बच्चे को बहुत बार सुनाई, बेटा ऐसा था, यहाँ असफल हुए, काम नहीं हो पाया। अच्छा क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया। तो जब आप अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाते हैं तो आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं। सफल होने में क्या है? सफलता के 1000 बाग होते हैं, कहा जाता है अंग्रेजी में, कहा जाता है 1000 fathers सक्सेस। असफलता के लिए कोई रोने वाला नहीं होता। मैंने शायद मीटिंग में कहा आपसे कि वो एक उंगली बेहतर है जो आपका आंसू पोंछती है विपत्ति में, उन सैकड़ों हाथों से जो आपकी सफलता में ताली बजाते हैं। सफल होने के बाद तो दोस्त ढूंढने थोड़ा ना पड़ते हैं, अपने आप आ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हर कोई ढूंढता है हमसे रिश्ता एक नया, हर कोई ढूंढता है हमसे अब रिश्ता एक नया। कामयाबी क्या मिली? रिश्तों का मौसम आ गया। सफल होने के बाद दोस्त नहीं ढूंढने हैं आपने, वो आपको खुद ढूंढ देंगे। आपको वही दोस्त संभाल के रखने हैं जो आपके विपत्ति काल से, बचपन से आपके साथ हैं, उन्हीं को आपको बनाए रखना है। तो बच्चों को अपनी असफलता की कहानी सुनाने से डरे मत। आप उसके हीरो हैं, आप हमेशा रहेंगे। जब बातें होती हैं लोगों से बताते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे ने हमारे बारे में क्या लिख रखा होगा, लेकिन आज जो अपने दोस्तों से बात करता है ओपनली कहता है कि आई गॉट द बेस्ट पेरेंटिंग मम्मी, मेरी पेरेंटिंग सबसे अच्छी हुई है। वो अपनी डायरी में नहीं उन्होंने लिख रखा होगा, उनकी मम्मी ने बताया मुझे, वो आपको ऐसे हीरो मानता है, एडमायर करता है। अच्छी बात है। मैं सारी बातें इसलिए करता हूँ, इसलिए नहीं कि बहुत ज्ञानी पुरुष बहुत है, कल कहा था मैंने आपसे ज्यादा गलतियां की, मैंने ज्यादा विपत्ति काल झेला, मजबूत होकर निकला। आपने कब के वीडियो निकले है वही सच्चा सोना। तो बच्चों को अपनी असफलता की कहानियां सुनाने से डरे मत। गलतियां हर व्यक्ति से होती है जीवन में, जो काम करना चाहता है, जो कुछ अच्छा करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे हर बार सफल होंगे, नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। तो असफलताओं की कहानियां सुनाने से डरे मत। क्या है हमारे जीवन में रहना माने तो थोड़ा सब कुछ अच्छा अच्छा हो, हमेशा हम नहीं जीतेंगे। जब कहीं दो बच्चे किसी टूर्नामेंट में होते हैं, किसी फील्ड में होते हैं, कई बच्चे दौड़ते हैं रेस में, बस तो एक ही आना है ना, तो इसका मतलब थोड़ा ना है कि जो हार गए हैं वो खराब हो गए हैं, बहुत मामूली सा अंतर होता है। गुड मैनर्स ये टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। बच्चे आपको हर वक्त देख रहे होते हैं, जितनी देर आप स्कूल में हैं, अगर आप पास 2000 बच्चे हैं तो आप मान के चलिए 4000 आंखें हर वक्त आप पे हैं। आप कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, सारा रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों के पास। वो गुड मैनर्स हमें इसलिए रखने होते हैं कि हमारा इम्पैक्ट है बच्चों की लाइफ में। और गुड मैनर्स हैं क्या? दे आर जस्ट लाइक जीरो इन अर्थमेटिक।
जीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर 1 के साथ लगा लो तो 10 हो जाता है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा है, और अगर कहीं गुड मैनर्स वाला कॉलम ब्लैंक है तो आपके सारे अच्छाइयों पे और गुण भारी पड़ जाते हैं। तो मैंने 2 बातें और बताई थी आपको, एक एंगर मैनेजमेंट कहा था और एक क्या कहा था, मतलब कुछ भारी पड़ती टीचर की पर्सनालिटी में। देखो ये 2 और गुण ऐसे हैं जो किसी भी अच्छे से अच्छे की पर्सनालिटी पे भारी पड़ जाते हैं। उसमें 9 अच्छाइयाँ हैं, एक अच्छाई एक खराबी आ गई कि एंगर मैनेजमेंट उससे नहीं हो पाया, क्लासरूम में रैश हो गए या ईगो से बाहर नहीं निकल पाए, तो उनकी जो 9 अच्छाइयाँ हैं वो खराब हो जाती है। व्यक्ति का ध्यान उनकी 9 अच्छाइयों पर नहीं जाता, उसे एक अगुण पर चला जाता है कि भाई ये वाले टीचर ये तो बहुत गुस्सा करते हैं, ये वाले टीचर तो बहुत मानते हैं, ये वाले टीचर ये तो बहुत अहंकारी है। वो पहले ये बोलता है, बाद में बताता है कि हाँ वो अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते अच्छा, जबकि उसको पहले ये बताना चाहिए हाँ वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये उसे पहले बोलना चाहिए, लेकिन वो ये बात बाद में बोलता है। तो ये गुड मैनर्स का है हमारे पास का। इनकरेज स्टूडेंट्स सो वेल, जब क्लास में जाएं एक प्रोत्साहन की नीति रखें। बच्चे बहुत कम साहस करके पूछ पाते हैं आपसे क्लास में, तो जब बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी बच्चे का किसी भी लेवल पे फुल मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। वो नर्सरी का बच्चा क्यों ना हो, अगर उसके 100 में 100 नंबर आए हुए हैं तो एडमायर करिए उसको। ये मत सोचिए कि नर्सरी क्लास में क्या है, तो बच्चा भी तो नर्सरी का है, पेपर भी तो उसी का है। टीचर्स कहते हैं छोटी क्लास में क्या है, सबके 100 आ जाते हैं। अरे भाई सबके 100 नहीं आ जाते हैं, आप क्लास का रिजल्ट देखो तो उसी बच्चों के 100 मार्क्स आते हैं। तो जिन बच्चों को पूरे नंबर मिलते हैं, 10 में 10 टेस्ट में मिल रहे हैं, 20 में 20 टेस्ट में मिल रहे हैं, या एग्जाम में पूरे नंबर मिल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बुलाइए, उनकी पीठ पे हाथ रखिए, प्रोत्साहन दीजिए। प्रतिभा को प्रोत्साहन जरूरी है। प्रतिभाएं बहुत अच्छी होती हैं, प्रोत्साहन के अभाव में खराब हो जाती हैं, डल हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। अगर आज अपने बच्चों को हम प्रोत्साहित नहीं करते अच्छे काम करने के लिए, उनके गुड डीड्स के लिए, उनकी किसी भी बात के लिए जिसके लिए वो योग्य हो। अगर किसी बच्चे ने, कल मैंने कहा था, वो रेस में फर्स्ट आया है, बाहर जाके कहीं स्टेज पर परफॉर्म किया है, किसी लेवल पे आगे आया है, उसने स्कूल का नाम रोशन किया है, उन बच्चों को जरूर प्रोत्साहित करिए। वो एसेट होने वाले हैं आपके लिए आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में आपके लिए एसेट होने वाले हैं वो, तो प्रोत्साहन जरूर देना। प्रतिभा को प्रोत्साहन जरूरी है, ये बात समझें। अगर आप सही समय में बच्चों को प्रोत्साहित नहीं कर पाए, आप बच्चे को खराब कर दें। एक वो बच्चा जो रेस जीतता है, वो चाहता है कि उसका स्पोर्ट्स टीचर उससे आगे शाबाशी दे। हर वो बच्चा जो 100 में 100 नंबर लाता है मैथ्स में, वो चाहता है उसका मैथ्स टीचर उससे कंधे पे हाथ रखे, बताए उसको बेटा योर टर्न कर, बहुत अच्छा किया तुमने। बोर्ड में बच्चे अब तो बहुत नंबर मिल रहे हैं, 100 में 100 आ रहे हैं खूब सारे। 2005-4 से पहले ये सिनेरियो थोड़ा मुश्किल था। जिस लेवल पे भी बच्चे फुल मार्क्स ला रहे हैं, उनका प्रोत्साहन जरूरी है। लास्ट ईयर हम लोग कोविड की वजह से नहीं कर पाए, इस बार भी ऐसे का रिजल्ट, लेकिन आपकी जब चीजें सही हों, आप उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनके नाम दीजिए, उनको स्टेज पर सम्मानित करिए, उनके सर्टिफिकेट बनवाइए। बिल्कुल मत हिचकें इसमें। जितना बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे आगे पढ़ने के लिए, आपका काम आसान होता चला जाएगा। आप क्या समझते हैं, क्लास में एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, जो पुरानी तस्वीरों में आप देखते हैं ना, भगवान जी की तस्वीर है, उसके पीछे एक औरा सर होता है, वो औरा कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र है। आप अच्छे लोगों के साथ बैठिए, आप उनकी एनर्जी फील करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में, उनके पास जाइए आप किसी काम से, 2 मिनट बैठिए, आपको लगेगा जिंदगी बड़ी आसान, ठीक है। आप बीमा एजेंट के साथ मत बैठिए, वो बता देगा आपको मरना भी फायदा है, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं रखा, आप मर जाओगे, आपकी बीवी को इतना मिलेगा। कोई है तो नहीं यहाँ पे बीमा एजेंट से चलाते हो, कोई है तो नहीं यहाँ पे। टीचर्स में हमारे बहुत सारे टीचर करते हैं ना साइड में काम, सर है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, ठीक है। आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं सर। बताइए मुझे प्यार से, कि आप लोग जिंदा रहने से ज्यादा मरने के फायदे बताते हो, बताइए सर प्लीज, सुनना चाहता हूँ। सर ऐसे बताते हैं कि मेरी लाइफ तो किसी की नहीं है कि लंबी चलनी
बाई चांस अगर ऐसा हो गया तो फैमिली को प्रॉब्लम होगा ऐसा। मैं बीमा वालों की सिर्फ एक बात से सहमत हो पाया अपने पूरे जीवन काल में। उन्होंने कहा बीमा क्यों लेना चाहिए, उसमें कई सारे कारण बताते हैं। एक कारण बताया उन्होंने बुढ़ापा, बड़ा वैलिड रीजन है, समझिएगा बात को। आप 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, आपको पता नहीं है अगला जीवन काल कितना है। आपको 65 साल की जिंदगी मिलने वाली है या 85 साल की। उन 25 सालों में आय का इंतजाम कहाँ से होगा? तो ऐसा नहीं हर बात गलत होती है, अपनी बात इफेक्टिवली कहनी होती है, समझानी होती है सामने वाले को। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ऐसे ही जीवनानंद पॉलिसी थी, जीवनानंद पॉलिसी थी, उसका टैगलाइन नहीं था। तो सब चीजें सब जगह खराब नहीं होती हैं, उनके एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। ये बड़ा वैलिड एस्पेक्ट है बीमा का जो बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आप चलो प्राइवेट सेक्टर में आप पेंशन मिलने वाली नहीं है, पीएफ के थ्रू जो पेंशन आती है उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी। जैसे मुझे पेंशन मैं कैलकुलेट कर रहा था, मुझे रिटायर कितनी पेंशन मिलेगी, मतलब पता लगा कैलकुलेशन किया मैंने, लगभग 1200 रुपये मिलने वाली है पेंशन। तो मैं शायद 1200 रुपये महीने में होगा क्या? तो सब्जी भी नहीं है घर की, समझे, बहुत कम परसेंटेज कटता है। आज पीएफ का अमाउंट हैंडसम है। मैंने स्टार्टेड माय करियर हार्डली 154 रुपये कुछ पहले में पीएफ कटे थे, कुछ 90 के बाद सैलरी नहीं होती थी, 26-27 रुपये सैलरी थी, 40 रुपये, तो कोई अमाउंट नहीं बनता वो 8% के हिसाब से। आज फिर भी सही है, आज जो आपका अमाउंट है वो फिर भी बेटर है, कुछ बचत हो सकती है अगर आपकी 20-30 साल की सर्विस हो जाती है तो। एनीवे वापस आते हैं, बीमा में एक एस्पेक्ट है कि लंबा जीवन, रिटायरमेंट के बाद इसका जीवन कितना रहने वाला है आपको पता नहीं है। तो पुराने लोग गवर्नमेंट के जो थे जिनको पेंशन मिल रही थी वो बेटर रहे, उनकी पेंशन बढ़ जाती है डीए के साथ साथ और 1-2 साल में रिवाइज हो जाती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो थिंक ओवर इट। ये पॉइंट आ गया बीच में तो अच्छी बात है, इसको भी ध्यान रखिए। मैं बात कर रहा था प्रतिभा को प्रोत्साहन जरूरी है। तो बच्चे को हर लेवल पे आप सपोर्ट करें जितना कर सकते हो। आप एक बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उसके इर्द गिर्द एक ऊर्जा क्षेत्र बनता है। जब वो बच्चा अपने ग्रुप के साथ बैठता है जिसको आप सपोर्ट कर चुके हैं, इसका मतलब आप अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर चुके हैं उस बच्चे को, फिर वो एनर्जी आगे ट्रांसमिट होनी है। आप जो थॉट उस बच्चे को दे चुके हैं, वो बच्चा आपके थॉट को आगे 4 बच्चों तक और पहुंचा रहा है कि मैम ने कहा था ऐसे काम करना है, सर ने कहा था ऐसे काम करना है, अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड में, अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में। तो इस तरह के थॉट जब आप आगे चल के ले जाते हो बच्चों के बीच में, आप देखते हो अपनी क्लास में एक ऊर्जा क्षेत्र बनने लगता है खुद ही। आपने 4 बच्चे ऐसे क्लास में तैयार कर दिए, जो 4 बच्चे और बनाते हैं, तो आप 16 बच्चे तैयार हो जाते हैं एक वीक के अंदर। आप जो बात एक बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 16 बच्चे उस काम को कर रहे होते हैं क्लास में। इसलिए प्रतिभा को प्रोत्साहन जरूरी है, इसलिए बच्चों का एनकरेजमेंट जरूरी है। आप कभी भी मत सोचिए कि आप एक बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं तो सिर्फ एक बच्चे को कर रहे हैं ना, आप दूसरों के लिए मोटिवेशनल हैं। वो एक बच्चा आपकी बात बहुत जगह पहुंचाता है, लेकिन ये बात समझने में आपको देर लग जाती है, कई साल लग जाते हैं अच्छा टीचर बनने में और ये बातें समझने में। मेरा ऐसा मानना है कि मानव मस्तिष्क की क्षमताएं अद्भुत। जैसे बार बार कहता हूं कि मुझे ना समझ नहीं आता है, मुझे समझ नहीं आता है, काम नहीं हो पाएगा। मानव मस्तिष्क की क्षमताएं सच में अद्भुत हैं, जरूरत है सिर्फ अपने आप को पूरे का पूरा झोंक देने की। आप रिजल्ट एनालिसिस करो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप देखोगे कि जो बच्चे आईआईटी में पास हो गए हैं और जो बच्चे आईआईटी क्लियर नहीं कर पाए, उनमें बहुत डिफरेंस नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स आल्सो। एक 135 करोड़ के देश में अगर हम 10,000 आईआईटी की सीट लेके उनका ऑल ओवर इंडिया एग्जाम कराते हैं 28-30 लाख बच्चों के बीच में, तो क्या रेशियो बैठता है, क्या परसेंटेज बैठता है। मैंने भी हिंदी डे में कहा था कि हमने आईआईटी बनाए, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हिंदी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, लेकिन हमने जितने मेडिकल कॉलेज जितने आईआईटी बनाए वो हमारे देश की जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम है। फिर हमने कुछ आईआईटी कुछ एनआईटी को मर्ज कर लिया, लेकिन उससे हालात नहीं सुधरे। वो सीटें बढ़ के मुश्किल से 10 से 12,000 हो पाई हैं, पहले 8,000 थी, फिर 10,000 हुई, फिर 12,000 हो पाई। आप समझते हैं इतने बड़े देश में इतनी सीटों के साथ एग्जाम होना, फिर हम बच्चों को लेबल कर देते हैं कि तुमसे तो आईआईटी नहीं निकला। जिस बच्चे को हम बचपन से टॉपर बनाते आ रहे हैं और बाद में आके उसको कहते हैं 12th में तुमसे तो आईआईटी नहीं पास निकला गया, तुमसे तो बेकार हो, तुम आता नहीं तुम्हें कुछ।
कल कहा था ना लेवल करते हैं, लेवल नहीं करना होता है, लेवल नहीं करना। उस डिफरेंस को समझें और अपने प्रोत्साहन को प्राथमिकता दें। अगर कोई बच्चा IIT क्लियर नहीं कर पाया है लेकिन आप उसको पढ़ाते वक्त ये समझ पाए थे कि इस बच्चे की योग्यता है, तब भी उसको इंकरेज करें, बेटा कोई बात नहीं, दैट इज द नंबर ऑफ सीट्स देयर। वो 500 सीट है वहाँ पे आप कॉलेज अप्लाई करना चाह रहे हो, या IIT में आपने CS अप्लाई की हुई है, वहाँ 400 सीट बन पा रही है, तो ऑल ओवर इंडिया इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, बेटा आप अच्छे हो, ठीक है, तो कट ऑफ था आपका थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन आपने मेहनत तो की, आप दौड़े तो। रेस में हम किसको अच्छा मानते हैं? वो जो अपनी रेस कंप्लीट करके हार जाता है, या वो जो रेस अपने बीच में ही छोड़ देता है? हम तो हमेशा बोलते हैं अपने बच्चों को अपने स्कूल में, बेटा ऑलवेज यू हैव टू कंप्लीट द ट्रैक, ट्रैक कंप्लीट करना है। कई बार हम भी दौड़ते हैं बच्चों के साथ एज ए मोटिवेशन, हमें पता है कि हमें पीछे रहना है, लेकिन फिर भी हम ट्रैक पूरा करते हैं उसको बच्चों को दिखाने के लिए कि नहीं आपको ट्रैक पूरे करना है, आप जिस ट्रैक पर भी दौड़ो। इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे, ये कहीं ना कुछ बनेंगे। हर बच्चे को, कल मैंने कहा था, सीड है, वो बीज है, वो तय हो चुका है उसे क्या बनना है, आपको सिर्फ उसे नर्चर करना है। आपको गेंदा को गुलाब, गुलाब को गेंदा बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ना उसे खींच के बड़ा करना है, आपको सिर्फ नर्चर करना है उसको। जो हवा, खाद, पानी, जमीन दे सकते हैं आप उसको, वो दीजिए। जो उचित माहौल दे सकते हैं उसके पनपने में, वो दीजिए। तो उचित माहौल यही प्रोत्साहन है। अगर आप प्रोत्साहन देते हैं, यकीन मानिए बच्चों को बहुत फर्क पड़ता है। आई हैव वंडरफुल रिजल्ट्स ऑन दिस थेरेपी। मेरे पास बिल्कुल करेक्ट बातें हैं अपनी बात कहने के लिए। एक बच्चे को मैथ समझ नहीं आती थी और उस बच्चे के सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे। वो केस मेरे पास क्लास 8 में आया, मेरे पास समय नहीं था, मैंने लिया नहीं, मैंने कहा नहीं पढ़ा पाएंगे, बैचलर फुल है, नहीं पढ़ा पाएंगे। वो माने नहीं पेरेंट्स, आपको ही पढ़ाना है, आपसे ही पढ़ना है बच्चे, देखेंगे आगे। बहुत कोशिश की उसके साथ, फिर 9th में आया, फिर लेट हो गया, फिर मैं नहीं ले पाया उनको बैच में, कोई इशू नहीं है, जाने दिया मैंने केस को। लेकिन वो केस मुझे इरिटेट इसलिए कर रहा था कि इस लड़की के सारे सब्जेक्ट में 90+ नंबर हैं, मैथ्स में क्यों फेल हो जाती है? वो चैलेंजिंग केस था और उसको कोई नहीं ले रहा था। 10th में फिर पहले दिन आके खड़ा हो गया, मुझे 9th से रिजल्ट मिला, उस दिन आके मेरे दरवाजे पे खड़ा हो गया कि सर गलतियां हो रही हैं, पिछले साल नहीं आपको पकड़ पाया, मैं इस साल नहीं पकड़ पाया, आपको 2 साल से हो रहा है, इस साल तो बस बच्चे संभालो, आपने करना है, प्रमोशन तो मैं करा लाया ऐसे जैसे तैसे, स्कूल में कह के अगले साल तो बोर्ड है, वहाँ काम कराऊंगा, आप संभालो इसको। बहुत कोशिश की मैंने उस लड़की के ऊपर, पता नहीं उसको फोबिया था मैथमेटिक्स से क्या, उसको बचपन में किसी टीचर ने कह दिया था तुम्हें मैथ समझ नहीं आती, तुम बेवकूफ हो, कुछ ऐसा था, सच। हाँ, उसको जूनियर क्लासेस में किसी टीचर ने बोल दिया था तुम बेवकूफ हो, तुम्हें मैथ समझ नहीं आती, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे मैथ्स, ऐसा किसी ने बोला उसको। और उस बात को उसने अपने मन में बिठा लिया, इलेक्ट्रोड डालना कहते हैं जिसे, इलेक्ट्रोड डाल दिया दिमाग में। मैंने बहुत मेहनत की उस पर, वो तीनों टर्म में पास नहीं हुई, उसमें 3 टर्म होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 3 टर्म, फिर उसके बाद कोई बोर्ड होता था, चौथा, फिर बोर्ड की बारी आती थी। बड़ा कठिन सिस्टम था, हम लोग कहाँ पढ़ा के आ रहे हैं, तो बड़ा आसान हो रहा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। वो तीनों टर्म में फेल हुई, उसके नंबर हमेशा 28, 30, 31 ऐसे ही आए, पास नहीं हुई बच्ची। वो मेरे लिए चैलेंजिंग होता जा रहा था डे बाय डे। तो फर्स्ट टर्म पास नहीं हुआ, मैं चलो कोई बात नहीं, अभी 5-10 नंबर आते थे, चलो 28 तक पहुँच गई, ठीक है हो जाएगा। फिर अगले टर्म में वही 28, 30, 31 गई। लास्ट में फिर मैंने उसको एज ए चैलेंज केस लिया, केस स्टडी करते हैं हम लोग एज ए टीचर। मैंने बहुत काम किया उसके ऊपर, उसको अपने घर पे भी पढ़ाया, उसे घर जाके भी पढ़ाया। वो फीस के इशू फिर खत्म हो जाते हैं, जहाँ लगन लग जाती है आपकी ना, जहाँ वहाँ फीस के इशू खत्म हो जाते हैं, जहाँ आप उसको पर्सनल ले लेते हो। बहुत मेहनत करने के बाद ये चैलेंज था कि 33 मार्क्स तो लाने ही भाई, प्रैक्टिकल नहीं होता था, 20 नंबर नहीं जुड़ते थे, 33 लाख ही पास होना था। तो उसके 38 नंबर आए बोर्ड में। एंड फादर, मदर, द गर्ल सो हैप्पी, भाई उन्होंने हफ्ते भर तक मुझे मिठाई खिलाई, 1-2 दिन नहीं, हफ्ते रोज वो कुछ ना कुछ लेके आया मेरे लिए जब रिजल्ट निकला होगा। फिर मैंने कहा भाई इसको मैथ्स में दिलवाना। अब लड़की की जिद थी, भाई मुझे तो अब समझ में आ गया, सर से मेरा मन लग गया, अब तो मैथ्स पढ़ूंगी, सर से पढ़ूंगी। ये फिर बाबा इस केस को कौन ले? पूरा साल निकल गया भाई पढ़ाने में, 38 नंबर लाने में, अब मैथ्स पढ़ानी है, लेकिन ना चीजें बदलती है। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उस लड़के ने मेरा सब 11th पढ़ा पूरा,
लास्ट में शायद 56-65 के आसपास नंबर थे, लेकिन द गर्ल वाज टॉपर इन द नेक्स्ट ईयर, शी गॉट 96 in 12th board. I was the same teacher, she was the same girl. तो मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ आपको? ये चीजें बदलती हैं, आपको लगातार सकारात्मक प्रयास करने होते हैं। आप इतना लंबा पेन नहीं ले पाते, आप इतना लंबा सोच नहीं पाते। मुझे सिखाया जीवन में, तो मैं घबराता नहीं इन चीजों को लेके, बिकॉज आई हैव द प्रूवन रिजल्ट्स ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ उस चीज के लिए मेरे पास प्रूवन रिजल्ट्स हैं। तो आप कभी किसी बच्चे को डिस्कार्ड मत करो। बच्चे जब तक आपके सहारे पढ़ रहे हैं वो एक अलग तरह का रिजल्ट देते हैं, लेकिन बच्चे जिस दिन खुद पढ़ना शुरू कर देते हैं वो एक अलग तरह का रिजल्ट देते हैं। तो बेहतर टीचर वो होते हैं जो बच्चों को इस बात की लगन लगा देते हैं कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ऐसे पढ़ना है, तुम्हें ऐसे पढ़ना है, तुम्हें ऐसे करना है। तो आपका काम क्या है? उसको राइट ट्रैक देना, उसको सही रास्ते पे ले आना। वंस दे स्टार्ट देमसेल्फ नोबडी कैन मेक देम स्टॉप। उनको रोक नहीं पाएगा कोई। और ऐसे एक नहीं, मेरे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं। बच्चों के साथ बहुत सारे प्रयोग करो आप। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको ऐसा इंग्लिश क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि जब हम लोग कहीं आपस में बैठे सोसाइटी में ना, अच्छा ये वाले इनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इनकी तो मैं रग-रग से वाकिफ हूं, बोलते ना हम ऐसा। हाँ माय डियर, आई वांट टू टेल यू, आप अभी अपने बारे में नहीं जानते। पिछला एग्जाम्पल वही था, मैं भी अपने बारे में नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था मैं इस लड़के को पढ़ा के इतने नंबर दिला पाऊंगा इसको, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था, ट्रूली आई एडमिट। तो जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, कोई बताता है आपको, a person never gets his introduction to himself throughout the life, लेकिन वो दूसरे को बताता है, often claims he knows other person very well। वो बताता है उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उनकी तो रग से वाकिफ हूं मैं। आप शेल में होते हैं, आप कॉफिन में होते हैं। आप सुबह उठते हैं, स्कूल आते हैं, पढ़ाते हैं, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर 4 बजे ट्यूशन पढ़ाते हैं, शाम को अपने बीवी के साथ, बच्चे के साथ टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। आपको लगता है नहीं? आपको लगता है नहीं? मुझे भी लगता था नहीं था। To change the job after 40 is not a good deal, never। मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपना 10 एक चांस के लिए। जब सब कुछ लाइफ में सही चल रहा हो, बड़ी इच्छा करती है पंगे लेने की। मैं भी लेना था उन दिनों,